Good evening, guys. Your thinking will decide your future. Your thinking will decide your character. Your thinking will decide your goal achieving power. Your thinking will decide your goal attaining power. So, see, thinking plays an important role while chasing your dream, while chasing your goals. So, do whatever you want to do, but thinking is an vital role while achieving any dream in your life. Good evening, everyone. I'm Ankush Sharma, son of a super loving parents and a part of an exciting family. I'm working as a design engineer at Winsome Express and an affiliate marketer. So, today at morning, I listen a book. The name of that book is The Magic of Big Thinking, written by John H. Schwartz. This book is basically about the thinking, what we need to think, how we need to think, and what exactly we need to think so that we can attain our goals, so that we can achieve our goals. So, for that, we can change overnight. It is a long process. We can change our thinking gradually, but you cannot change your thinking overnight. So you have to change thinking gradually, and it will change gradually like that. So the name of the book is The Magic of Big Thinking. Today I'm going to review for you because I listened at today morning, and I wrote something for you guys, and I just think that I need to. If you don't read books so that you can gain some knowledge, so let's begin. So the book, as I told you, that the book is basically about the thinking, that what you think, how you think, what kind of thinking that you have so that you can attain the dreams in your life. So welcome. So let's begin. So first point, you will get success if you believe that you are worth it, that you can only get the success if you think that you can deserve it. If you don't deserve it, you will not get success. As simple as that. अगर आप ये मानते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो. अगर आप ये मानते ही नहीं हो कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो कैसे चलेगा काम, या फिर कैसे सक्सेसफुल हो पाओगे. यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. चाहे दुनिया आप पे भरोसा ना करे, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सुबह उठ के आप सुबह एक सेंटेंस आप अपने आप से ज़रूर बोलें, आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस, एंड आई विल डू दिस. सो जब आप अपने आप से कुछ एनर्जेटिक रहें, अपने आप से पॉजिटिव बात करें. सो बिलीव इन योर सेल्फ. अगर आप ये मानते हैं कि सोसाइटी आप पे भरोसा करे, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए. अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है, तो ये कैसे उम्मीद रख रहे हो कि आप सोसाइटी भी आप पे भरोसा करेगी? नहीं करेगी. अगर आपको खुद पे भरोसा है, तो ये लोगों को मोटिवेट करता है. इफ़ यू बिलीव ऑन योर सेल्फ, देन पीपल मोटिवेट बाई यू. इफ़ यू डोंट बिलीव ऑन योर सेल्फ, सो हाउ कैन यू think that people will motivate by me or by anyone? So you need to motivate by yourself. You need to think like that. Second point, excuses are the main reason to get failure in your life. There are two kind of people, successful and unsuccessful. Successful people always think on the solution. They always have a one attitude that never give up. They never give up. But unsuccessful people always think about problem. They always told you that I can't do this. So this is the way. Two different people, successful and unsuccessful, but the thinking are different. एक ये सोचता है कि मैं कर नहीं सकता, और दूसरा ये सोचता है मैं कर लूँगा.
एक के पास एटीट्यूड है कि दैट ही नेवर गिव अप, और दूसरा ये सोचता है कि वो एक्सक्यूज ढूंढता है। एक के पास सॉल्यूशन है तो दूसरे के पास प्रॉब्लम है। तो हमारी थिंकिंग हम डिपेंड करती है कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। कोई भी इंसान हो इस धरती पे, हर कोई प्रॉब्लम फेस करता है, बट हम प्रॉब्लम किस तरह फेस करते हैं वो हमारी लाइफ को डिसाइड कर जाता है। अब मैं क्रिकेट की बात करूं तो दो तरह के बैट्समैन होते हैं, एक एग्रेसिव और एक डिफेंसिव। अगर लेट सपोज मुझे 10 बॉलों पे 21 रन चाहिए तो मुझे किस बैट्समैन की ज़रूरत है, मुझे किस तरह की थिंकिंग लानी चाहिए, एग्रेसिव या डिफेंसिव? ऑब्वियसली एग्रेसिव। और वहीं एक टेस्ट मैच है जहां मुझे टेस्ट मैच बचाना है, मुझे 200 बॉलें खेलनी है और एक भी रन नहीं बनाना है, तो मुझे कौन से बैट्समैन की ज़रूरत है, कौन से थिंकिंग की ज़रूरत है? डिफेंसिव। सो वक्त वक्त पे हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ता है। आपकी थिंकिंग आपकी लाइफ चेंज कर देगी। हम डिफ़िकल्टीज़ हर इंसान की लाइफ में आती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ हैं तो लाइफ है, डिफ़िकल्टीज नहीं है तो लाइफ नहीं है। अगर डिफ़िकल्टीज़ होती है ना तो लाइफ ऐसे ऐसे चलती है, अगर डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी तो लाइफ से सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की तरह चलेगी, और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है यू आर डेड। थर्ड पॉइंट, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आपके अंदर जितने भी फियर्स होंगे वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो किस तरह से वो फियर डिस्ट्रॉय होंगे? अब कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के तरीके क्या होते हैं? जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है अब उसको आप इतनी ज़्यादा बार फेस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम, आपको फियर ही ना लगे। अब मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो अप्रैल से पहले मैंने इतने इंस्टाग्राम लाइव्स, फेसबुक लाइव्स, यूट्यूब लाइव्स नहीं किए थे क्योंकि मुझे कैमरा से डर लगता था। बट नाउ आई एम गुड इनफ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। इस वक्त मेरी 150 प्लस से वीडियोज़ हैं ऑन सोशल मीडिया, जस्ट बिकॉज दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ। अब मेरे में वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कैमरा को फेस कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ा बहुत। सो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए जितने भी आपके फियर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। और सबसे बड़ा फियर पता क्या होता है लाइफ में? दैट व्हाट पीपल थिंक। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। अरे लोगों को तो काम है कहना, लोग तो कहेंगे, लोगों को काम है कहना, बट आप ये देखिए आप किन लोगों के बीच में हो। आप उन लोगों के बीच में जो आपके बारे में सिर्फ हमेशा बुरा बोलते हैं, या उन लोगों के बीच में हो जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, चाहे आप थोड़ी सी गलती भी करो फिर भी आपको मोटिवेट करते हैं। आप किन लोगों के बीच में खड़े रहते हो वो आपका फ्यूचर डिस्क्राइब कर देते हैं। एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे मेरे 5 फ्रेंड्स दिखा दो, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा कैसा है। बात सच भी है, आपके दोस्त कैसे हैं आपका फ्यूचर डिसाइड कर देंगे, क्योंकि आपकी सराउंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है आपकी सक्सेस में। फोर्थ पॉइंट, हाउ टू थिंक बिग। अगर कुछ बड़ा पाना है तो सबसे के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपल, जब आप कुछ बोलो उससे पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। कहते हैं ना, बाण से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द दोनों कभी वापस नहीं आते, और दोनों ऐसे लगते हैं, और एक का तो घाव दिख जाता है लेकिन दूसरे का घाव नहीं दिखता है। और जो वर्ड्स का जो पेन होता है वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि जो शब्द घाव दे सकते हैं वो ना तो कोई गोली दे सकती है ना कोई बाण दे सकते हैं। जो इसको हमेशा याद रखें, जो भी आप शब्द यूज़ करें बोलते वक्त सोचें और फिर बोलें, क्योंकि आप क्या बोल जाएं और सामने वाले को क्या अच्छा ना लगे आप नहीं बता सकते। सो हमेशा आप क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं दोनों पे ध्यान रखें। हमेशा पावरफुल वर्ड्स का यूज़ करें। अब लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहूँ गुड इवनिंग, आप भी बोर हो गए होंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा बोलते बोलते। अब गुड इवनिंग की जगह मैं ये बोलूँ मार्वलेस मॉर्निंग, मार्वलेस इवनिंग, एक्साइटिंग इवनिंग, तो ये एनर्जेटिक वर्ड्स हैं। आप एनर्जेटिक वर्ड्स यूज़ करें, ताकि जब आप एनर्जेटिक वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, चाहे किसी दूसरे के लिए यूज़ करें, बट आप खुद में भी एक एनर्जी फील करोगे। अब लेट्स सपोज अब मैं बोलूँ गुड मॉर्निंग गाइज, गुड इवनिंग गाइज, आई डोंट थिंक कि आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर मैं यही इसकी जगह बोलूँ गुड इवनिंग गाइज या एक्साइटिंग इवनिंग, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और शायद आपको सुनने भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत कम लोग पावरफुल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और जो यूज़ करते हैं वो एफर्ट्स करते हैं।
सो हमेशा बड़ा सोचें, बड़ा पाने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। 5th पॉइंट, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम इफेक्टिवली, क्रिएटिवली। दो तरह की थिंकिंग होती है, एक तो फैक्ट मेमोराइजेशन और दूसरी क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइजेशन यानी कि जस्ट फैक्ट एंड फिगर्स को याद रखना, ग्राफ्स को याद रखना। हमारे पास फैक्ट मेमोराइजेशन में सॉल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ प्रॉब्लम्स होती हैं, और प्रॉब्लम्स किस हद तक होती हैं सिर्फ वो होता है। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग में हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हम अब हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कैसे करें? 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप, एक्सेप्ट न्यू थिंकिंग। अगर कोई इंसान नया सोचता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर किसी ने आपको एक नया सजेशन दिया उसे एक्सेप्ट कीजिए। मे बी वो आपके काम का हो या ना हो, दैट्स डजंट मैटर, बट एक्सेप्ट कीजिए उसे। सेकेंड, इम्प्लीमेंट द न्यू थिंग्स एंड गिव टाइम टू दोज थिंग्स। लेट सपोज आपने कुछ नया सोचा है, उसे इम्प्लीमेंट कीजिए और टाइम दीजिए। रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं बनती है। सो ऑलवेज गिव टाइम, एम्पल टाइम फॉर योर पर्टिकुलर वर्क। गिव टाइम एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इन फ्यूचर। थर्ड पॉइंट, हर सुबह 10 मिनट अपने आप से ये पूछे कि मैं इस दिन को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, और या अपने आप में से अच्छा कैसे निकाल सकता हूँ। हाउ कैन आई गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी इन दिस मॉर्निंग। यू नीड टू गिव 10 to 15 मिनट्स टू योर सेल्फ सो दैट यू कैन प्लान योर डे। जब आप प्लानिंग करते हो किसी चीज़ की तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देते हो। अगर नहीं करते हो तो वाइस वर्सा आप अपनी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर देते हो। 6th पॉइंट, यू आर व्हाट थिंक यू आर। आप क्या हो वो डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। अगर आप नेगेटिव लोगों के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो तो आप नेगेटिव बन जाओगे। अगर आप पॉजिटिव लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो आप पॉजिटिव रहोगे। सो जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। सो ऑलवेज थिंक अबाउट जस्ट पॉजिटिव्स। जितने भी नेगेटिव पीपल है आपकी लाइफ में या सोशल मीडिया पे पेजेस हैं उनको नेगलेक्ट कीजिए। आप जितने नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे उतना ही आपका नुकसान होगा। अगर आप मेरी सोशल मीडिया या मेरी लाइफ में आप देखोगे तो आई डोंट थिंक कि मेरे लाइफ में ऐसा कोई नेगेटिव पर्सन है जो मुझे डिस्करेज करे, या फिर मेरी सोशल मीडिया पे कोई ऐसा पेज है या मैं कभी कोई ऐसा पोस्ट नहीं करता, ना रिलीजियस ना किसी भी तरह के कोई ऐसे पोस्ट नहीं करता जिससे कोई इंसान कुछ सीख ना सके। मेरे जितने भी स्टोरीज होते हैं, जितने भी पोस्ट होते हैं, उससे कुछ ना कुछ अगर सीख सकते हो। अगर उन्हें पढ़ते हो तो अक्सर आप देख के छोड़ देते हो, दैट्स द अदर थिंग। बट अगर आप उन्हें पढ़ते हो तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा हर स्टोरी से आपको। सो आप अपनी सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करते हो, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ये डिपेंड आप पे करता है। और आप किस तरह से यूज़ करते हो वो आपका करेक्टर डिफाइन कर जाता है। आप सोशल मीडिया को सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हो या सोशल मीडिया को जेन्युइनली यूज़ करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट आप किस तरह की पोस्ट शेयर करते हो, किस तरह की पोस्ट करते हो, ये आपका माइंडसेट दिखा देता है। अगर आप एक अच्छा पोस्ट करते हो तो यानी कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के हो, लेकिन आप वहीं आप एक रिलीजियस या कुछ गलत तरह की पोस्ट करते हो तो आपका नेगेटिव माइंडसेट है। आप हमेशा अपने बारे में एक ऐड लिखिए। ऐड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में आपको ऐड देना है। ऐड इन सेंस के लेट सपोज आपने मैट्रिमोनियल एड्स देखे होंगे जहाँ पे एक लड़का अपनी खूबियाँ बताता है शादी के लिए और लड़की अपनी खूबियाँ बताती है शादी के लिए। सो आपको भी हर रोज़ अपने बारे में एक ऐड लिखना है और ऐड में अपनी पॉजिटिव चीज़ें बतानी है कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, मेरे में ये खूबियाँ, मेरे में ये अच्छाइयाँ हैं। सो आपको वो एड्स रोज़ लिखने हैं और दिन में एक बार वो ऐड को अकेले में लाउडली पढ़ना है और इंटरनली रेगुलरली पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप में क्या क्या खूबियाँ हैं वो आप खुद रिकॉल करोगे, और जितनी बार आप रिकॉल करोगे उतनी बार वो चीज़ें आपकी लाइफ में और आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी, यानी कि आपकी वो हैबिट बन जाएगी। आपको आपकी खूबियों के बारे में खुद पता चल जाएगा। सो ऑलवेज थिंक लाइक दैट। सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी। सो ये सोचो कि आज से मैंने स्टार्ट किया और कल मेरे को सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 7th पॉइंट, मैनेज योर एनवायरनमेंट टू गो फर्स्ट क्लास। आपका एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कि आप आगे सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। बट आई एम लकी दैट चाहे मेरे ऑफिस की बात करूँ, चाहे मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, मेरे पास ऐसा एनवायरनमेंट है कि लोग मुझे मोटिवेट करते हैं। अगर मैंने कुछ वीडियो में गलती भी की है तो लोग मुझे बता देते हैं कि यार ये तेरी गलती है, तो इसे सुधार। दैट्स मोटिवेट्स मी।
कोई मुझे अप्रिशिएट भी करता है मेरे एफर्ट्स के लिए, और कुछ मुझे बताते हैं कि आप इस वीडियो में ये करें, कुछ वीडियो एडिटिंग करें। तो इट मोटिवेट्स मी। आपका एनवायरनमेंट आपको आपके फ्यूचर बता देता है। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू रीड डिफाइंस योर फ्यूचर। आप क्या सोचते हो, आप क्या पढ़ते हो, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका फ्यूचर बता देंगे। लेट्स सपोज आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हमेशा पार्टी करते हैं, क्लबिंग करते हैं, और जिनका कोई गोल नहीं है, तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या थिंकिंग होगी उस पर? आप भी वैसे ही बन जाओगे उनके साथ। और दूसरी तरफ आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा गोल ओरिएंटेड है, अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, अपने टाइम को वैल्यू करते हैं और नई नई चीज़ें सीखने में करते हैं। तो क्या होगा, आपकी थिंकिंग भी वैसी हो जाएगी और आपकी सराउंडिंग अच्छी बन जाएगी। अब एक स्कूल में एक स्टोरी थी कि जब हम फेल, मतलब जब हमारे कम नंबर आते तो हमारी क्लास टीचर क्या करती थी, मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी क्लास टीचर क्या करती थी, मुझे एक क्लास के जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट होता था मुझे उसके साथ बिठा देती थी। फिर लगभग 1 से 2 महीने ऐसा चलता था, मैं उस स्टूडेंट के साथ बैठता था और उस स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स मेरे अंदर आ जाते थे कि वो किस तरह पढ़ता या पढ़ती है, वो मैं सीख जाता था उससे, और वो मुझे बहुत हेल्प करते थे। क्योंकि जब आपकी सराउंडिंग अच्छी होती है ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको सिर्फ अप्रिशिएशन मिलती है और कमेंडेशन मिलती है, आपको व्यूज़ मिलते हैं कि आपने कैसा किया और कैसा करना चाहिए। लेकिन आपकी सिर्फ इन्वायरमेंट ही ख़राब हो कि यार नहीं, आज क्लबिंग करते हैं, आज पब चलते हैं, बार चलते हैं, आज ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि क्लबिंग वगैरह गलत है, बट हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आप कुछ नया सीखना है तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है। क्लबिंग कीजिए, ड्रिंक भी कीजिए, बट एक एम्पल टाइम पर, एक सही टाइम पर। मैं नहीं कहता कि आपको फ्रेंड्स के साथ क्लबिंग नहीं करनी चाहिए या फिर एंजॉय नहीं करना चाहिए, करो, बट तब जब आपने कुछ अचीव कर लिया हो। आप दारू पी रहे हो, वो भी किसी दूसरों के पैसों की, क्या सही है ये? आई डोंट थिंक सही नहीं है, सही नहीं है। 8th पॉइंट, मेक योर एटीट्यूड योर एलाइज। आपका एटीट्यूड आपका सक्सेस बताता है कैसा है। लेट्स सपोज 2 पर्सन है, एक पुअर और एक रिच, दोनों के एटीट्यूड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो आपने कृष्ण सुदामा की स्टोरी तो सुनी होगी। सुदामा और एक राजा था, सुदामा बहुत गरीब और राजा बहुत अमीर। राजा के पास बहुत पैसा और सुदामा के पास बहुत गरीबी थी। तो सुदामा को ये कहा गया कि आप राजा के बारे में उसकी बड़ाई करो, उसकी प्रशंसा करो और आपको सोने की अशर्फियाँ मिल जाएंगी, गोल्ड कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। बट सुदामा ने ऐसा नहीं किया और उस राजा ने क्या किया, उसको धक्के मार के अपने महल से बाहर निकाल दिया। तो इस एटीट्यूड से आपको राजा की थिंकिंग या फिर उसके बिहेवियर के बारे में क्या पता चलता है? क्योंकि जब इंसान के पास सिर्फ इसका मतलब ये होता है, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है और उसके पास एटीट्यूड नहीं होता, वो घमंडी बन जाता है, उसमें ईगो आ जाती है। और वही दूसरा इंसान जिसके पास पैसा भी है और एटीट्यूड भी है, वो उसके पैर हमेशा ज़मीन पे रहते हैं। एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान ही है कि वो जितना बड़ा मर्जी सक्सेसफुल इंसान बन जाए, पर उसके पैर हमेशा ज़मीन पे रहने चाहिए, हवा में नहीं होनी चाहिए। जिस दिन उसके पैर हवा में हो गए, उसमें ईगो आ गई, और जिस दिन उसमें ईगो आ गई, वो अनसक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में जाता चला जाएगा। सो आपका एटीट्यूड आपको हेल्प करता है ग्रो करने में, आपका एटीट्यूड आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। आप कोई भी प्रेजेंटेशन दीजिए, आपको ऑफिस में जाइए, आपके प्रेजेंटेशन दीजिए, तो ड्रेस लाइक ए जेंटलमैन। ये नहीं है कि कॉलर खड़ी है या कुछ भी। सो कहीं पे भी जाएं, ड्रेस लाइक ए जेंटलमैन। और सेम अप्लाइज टू द वुमन। अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो और आप ये उम्मीद रखते हो कि जो मेरी मीटिंग का जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आपके अंदर खुद पॉजिटिव चीज़ें इनहेल करनी पड़ेंगी, खुद पॉजिटिव बन के दिखाना पड़ेगा। तभी एक सामने वाला इंसान आपके बारे में पॉजिटिव सोचेगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देगा आपको। बट ऑन द सेकंड थॉट अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के हो, यार मेरे को नए आदमी से मिलना, मेरा मूड नहीं है, मेरे को काम नहीं करना है, तो ये नेगेटिव थिंकिंग है। अगर आप इस माइंडसेट से अगर किसी एक नए इंसान से मिलते हो, तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो ख़राब आएंगे, एंड डेफिनेटली वो वर्थ इट नहीं होंगे, वो आपको किसी काम के नहीं होंगे।
So always have a positive attitude towards life, toward people. Think right towards people. हमेशा लोगों के बारे में सही सोचो. लेट सपोज किसी ने आज आपको कुछ बुरा भला कह दिया, मे भी हो सकता है उसको कोई पर्सनल इश्यू हो या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हो और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी ताकि जिस वजह से आपको उसने बुरा भला कह दिया. बट वही इंसान सेकेंड डे आपको विश करे, आपसे माफ़ी मांगे, तो इसका मतलब वो इंसान अच्छा है. उस दिन उसके दिन थोड़े ख़राब थे तो इसलिए उसने आपसे रूडली बात कर लिया. सो दैट्स द वे. आप हमेशा लोगों के बारे में सही सोचो. बी जनरस टुवर्ड अदर. हमेशा लोगों की हेल्प करो, क्योंकि जब आप लोगों की हेल्प करोगे ना तो आपका एक कैरेक्टर बिल्ट होगा लोगों की आंखों में. और जब आपका एक कैरेक्टर बिल्ट हो जाता है ना तो वो हमेशा आपको सिर्फ पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, पॉजिटिव तरीक़ों से ही आपको नवाजेंगे. यू विल नीड हेल्प इन द वे टू सक्सेस. एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप कभी अकेले सक्सेस नहीं पा सकते हो. आपको एक टीम चाहिए होती है सक्सेस पाने के लिए. सक्सेस पाने के लिए आपको एक ऐसी टीम चाहिए जो आपको हेल्प करे. वो कहते हैं ना, पेड़ पर चढ़ने के लिए अकेला आदमी काफ़ी होता है, लेकिन जब एक दीवार पे चढ़ना होता है ना तो वो एक लैडर बनानी पड़ती है आदमियों की, इंसानों की. तो वो हमेशा बना के रखें, क्योंकि जब आपके पास एक ऐसी टीम होगी जो आपको हेल्प करे सक्सेसफुल होने में, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. कहते हैं सक्सेसफुल होने से सिर्फ आपको एक इंसान रोक सकता है, वो खुद मैं अपने आप को रोक सकता हूँ सक्सेसफुल होने से. अदरवाइज कोई नहीं रोक सकता, खुद ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता. दैट्स द पावर ऑफ एटीट्यूड. पॉइंट नंबर 10, गेट द एक्शन हैबिट. आपने सोच लिया, आपने प्लानिंग कर लिया, आपने लिख लिया, सब कुछ कर लिया, बट उस पर एक्ट नहीं कर रहे हो. इसका क्या मतलब हुआ भाई? आपने लिख लिया, आपने पढ़ लिया, आपने सब कुछ कर लिया. यार मुझे आज सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करनी है, 7 बजे ब्रेकफास्ट, 8 बजे तैयार होना है, 9 बजे ऑफिस जाना है, सब लिख लिया है कॉपी में रात को, बट उठ आप 9 बजे रहे हो. इसका क्या मतलब हुआ भाई? एक्शन तो लेना पड़ेगा ना. कोई भी सक्सेसफुल इंसान अपनी रूटीन से सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया. अब जेफ बेजोस की मैं बात करूं, चाहे वॉरेन बफेट की बात करूं, चाहे एलोन मस्क की बात करूं, उनकी रूटीन डिस्क्राइब कर जाती है उनके सक्सेस के बारे में. उनका रूटीन कैसा है वो सब आपको डिस्क्राइब कर जाता है. अदरवाइज सिर्फ आपकी रूटीन आपके बारे में बता देती है कि आप कैसे हो. सो आपकी रूटीन हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर आपकी रूटीन सही है, कहते हैं ना, एवरी बिग थिंग्स स्टार्ट विद अ स्मॉलर इम्प्लीमेंटेशन. हर बड़ी चीज़ छोटी इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट होती है. बड़ी इमारत के लिए सबसे पहले एक नींव रखी जाती है, एक ईंट रखी जाती है, उसके ऊपर बड़ी इमारतें खड़ी की जाती है. बुर्ज खलीफा के बारे में आप सब लोग जानते हो कि वो 840 मीटर लंबी है, ऊंची है. 840 मीटर ऊंची ज़रूर है, बट किसी को ये पता है कि वो 60 मीटर नीचे भी है. उसकी नींव 60 मीटर नीचे भी है, ज़मीन के नीचे. क्यों? उसकी बाउंडेशन, उसकी बिल्डेशन उतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इतनी ऊंची इमारत बना सकते हैं. सो आपकी एक्शन हैबिट कैसी है? आप क्या अपने प्लान पे एक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, वो आपकी सक्सेस पे डिफाइन हो जाएगा. आप एक एक्शन टेकर हो या नहीं हो, या सिर्फ एक थिंकर हो, या सिर्फ सोच के छोड़ देते हो, नहीं यार हाँ यार पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. एक्शन टेकर ज़्यादा सोचता नहीं है, वो सीधा कर डालता है. एक्शन उसने सोचा, इम्प्लीमेंट किया, एक्शन लिया, ख़त्म बात. जो होगा देखा जाएगा, ये होता है एक्शन टेकर. सोचने वाला सोचता रह जाता है, यार मैं 100 रुपये लगाऊँ इन्वेस्टमेंट में, ना लगाऊँ, यार 100 रुपये में मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ या नहीं कर जाऊँ, वो सोचता रहेगा. एक्शन टेकर सोचेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, ख़त्म करेगा बात, बस. पॉइंट नंबर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री. अब हम में से ज़्यादा लोग क्या होंगे, जब एक क्रिकेट का मैच, अगर हम एक मैच हार जाते हैं तो हम हताश हो जाते हैं, यार नहीं जीत सकते, नहीं हो सकता. या लेट सपोज हम कुछ टास्क कर रहे हैं, हमने 10 बार ट्राई कर लिया, 20 बार ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है, हार के हम गिव अप कर जाते हैं. उधर एक दूसरा इंसान है जो 1000 बार हार चुका है, बट फिर भी वो एक बार ट्राई करेगा और उस एक ट्राई में वो जीत जाएगा. क्यों? क्योंकि वो अपनी हार को जीत में बदलना चाहता है, क्योंकि उसके पास वो एटीट्यूड है, वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, और वही एटीट्यूड उसे हेल्प करेगा हार को जीत में बदलने के लिए. आपको ये याद तो होगा कि एवरी प्रॉब्लम्स
has an scope of an opportunity, but every opportunity comes with an risk, fear of risk. हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी के साथ आती है कि आप अपने आप को प्रूव करें, बट हर अपॉर्चुनिटी आती है किसके साथ? रिस्क के साथ, फेलियर के साथ. अब हम में से कितने लोग होंगे यहाँ पे? कुछ लड़कियाँ भी हैं, कुछ लड़के भी हैं. हम सब ने रोटी बेलने के लिए ट्राई किया होगा, सब ने ट्राई किया होगा, मैंने भी किया है. कुछ लड़कियाँ भी हैं, उन्होंने भी ट्राई किया होगा. सो आप में से कितने हैं जिन्होंने पहली बार रोटी बेली और वो गोल बन गई? कोई है? मेरी तो आज तक नहीं बनी. खैर, बहुत कम लोग होंगे जिनकी जो रोटी है एक ही टाइम में सर्कुलर बन जाए. नहीं होगा कोई, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. सो लेट्स सपोज आपने पहली बार रोटी बेली और आपकी गोल नहीं बनी, तो क्या आपने छोड़ दी रोटी बेलनी? नहीं, आपने दोबारा प्रैक्टिस करी, दोबारा चीज़ों को सीखा, दोबारा को इम्प्लीमेंट करा. सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. यू विल नो वेयर यू आर एट मिस्टेक्स एंड एग्जामिन योर वर्क. जब आप अपने काम को एग्जामिन करोगे ना, तो आपको आपकी मिस्टेक्स के बारे में पता चल जाएगा. लेट्स सपोज आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आए, तो आपने जब रिजल्ट्स देखा ना, आपकी जो मिस्टेक्स थी वो आपने देखी, यार ये इसकी जगह एम लगना चाहिए था, विल की जगह वॉज लगना चाहिए था. तो जब आप एग्जामिन करते हो ना अपने बारे में, अपने एग्ज़ाम के बारे में, अपने रिजल्ट्स के बारे में, तो आप अपने बारे में कुछ नई चीज़ें सीखते हो. और जब आप कुछ अपने बारे में नई चीज़ें सीखते हो, उसे इम्प्लीमेंट करते हो नेक्स्ट टाइम, ताकि वो मिस्टेक्स ना हों. सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक एंड लर्न न्यू थिंग्स. पॉइंट नंबर 12, यूज गोल्स टू हेल्प योर ग्रो. आपको कोई भी सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहली डिमांड क्या होती है? गोल होना. क्या आपकी आंखों में इतनी शक्ति है कि वो गोल देख सके, कि वो सपना देख सके? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को अपने लिए एक बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक ऐसा बैंक बैलेंस चाहिए कि मैं 35 से 40 की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लूं. मुझे अपने बैंक अकाउंट में एक ऐसा बैलेंस चाहिए कि मैं 35 से 40 उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लूँ, मैं उसके बाद काम ना करना पड़े. मेरा ये सपना है. आपका भी कुछ ना कुछ सपना होगा. तो सपने हों, गोल्स हों, वही इंसान आगे बढ़ सकता है. अब जिसके पास कोई सपना ही नहीं है, जो रात को 2 बजे उठ रहा है, सो रहा है सॉरी, और 11 बजे उठ के कुछ कर ही नहीं रहा है, उसका क्या सपना होगा? सुबह 11 बजे उठ के वही, हाँ, उसका एक फ़ायदा है. लेट्स सपोज कोई रात के 3 बजे या 4 बजे सोता है और सुबह 11-12 बजे उठता है, उसका एक इंसान को एक फ़ायदा है, वो अपना ब्रेकफास्ट बचा लेता है, ब्रेकफास्ट के पैसे बचा लेता है. सो ये एक फ़ायदा है लेट उठने का. लेकिन जो इंसान टाइम पे उठता है या टाइम पे सोता है, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं. गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन आवर लाइफ. क्योंकि जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होगा ना, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो. अब मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, मेरे को टास्क मिलते हैं, और जब तक मैं टास्क कंप्लीट करता रहूँगा, मेरा मन लगा रहेगा काम करने में और मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा. लेट्स सपोज एक दिन मुझे टास्क मिलना बंद हो जाए, क्या होगा? मैं बोर हो जाऊँगा, मेरे पास कोई गोल ही नहीं है काम करने का. मैं क्या करूँगा? मैं खाली बैठ के अपने लिए ही कुछ इन्वेस्ट कर पाऊँगा. लेकिन जब तक ऑफिस में मेरे को टास्क मिलते रहते हैं, मैं मोटिवेटेड रहता हूँ और मुझे काम करने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है. जब आप अपने गोल सेट कर लेते हो ना, तो फिर आपको पता चल जाता है कि मुझे कितना एफर्ट लगाना है कि मैं एक गोल अचीव कर लूँगा. लेट्स सपोज मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना है. मैं ज़्यादा बहुत तरीके से जा सकता हूँ. पैदल भी जा सकता हूँ, साइकिल पे भी जा सकता हूँ, बाइसिकल पे भी जा सकता हूँ, कार पे भी जा सकता हूँ. अब वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे जाते हो. आपके पास एक गोल है कि मुझे 2 मीटर चलना है. अब चलने के लिए मैं साइकिल भी यूज़ कर सकता हूँ, बाइसिकल भी यूज़ कर सकता हूँ, कार भी यूज़ कर सकता हूँ. तो जब आपके पास एक गोल होता है ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि मुझे कितना एफर्ट लगाना है ताकि मैं अपना गोल को अटेन कर पाऊँ, गोल को अचीव कर पाऊँ. पॉइंट नंबर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर. अब लीडर की तरह कैसे सोचा जाए? आपने सोचना तो स्टार्ट कर दिया, बट एक लीडर की तरह कैसे सोचा जाए? बिकॉज यू नो वन थिंग, you are the CEO of your life, you are the president of your life. It's all about you, that how you will think will justify your future. People won't accept you if you don't represent yourself as confidently. सोसाइटी आपको तब तक नहीं अपनाएगी जब आप अपने आप को एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन ना रिप्रेजेंट कर पाओ. अब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए.
कहते हैं ना, झूठ भी आप इतनी कॉन्फिडेंस से बोलिए कि सामने वाले को सच लग जाए। सो जब भी ये सोचें कि यार मुझे कैसे सोचना चाहिए, तो थिंक लाइक अ लीडर, कि एक देश का प्रेसिडेंट कैसे सोचेगा कि वो अपने देश को किस तरह चलाए। तो वो देखो, हमेशा हमेशा अपने आप को एक अथॉरिटी पोजीशन पे रख के डिसीजन लो अपनी लाइफ की, अपने बारे में या अपनी किसी दूसरे के बारे में। एक अथॉरिटी पोजीशन पे जब रह के आप डिसीजन लेते हो ना, तो वो डिसीजंस बहुत बेहतर ले पाते हो आप। बुनास्पद एक ऐसी ऑर्डिनरी प्लेस पे रखे, ऑर्डिनरी से प्लेस पे प्लेस करके अपने आप को डिसीजन लोगे, वो किसी भी काम के नहीं होंगे। बट जब आप अथॉराइज्ड पोजीशन पे रह के आप कोई डिसीजन लोगे तो बहुत बेहतर होंगे। आप हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछे, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ और किस तरह से मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। जब आप अपने बारे में ये सोचते जाओगे ना, तो आप इम्प्रूव करते चले जाओगे। बट जिस दिन आपने ये सोचना बंद कर दिया कि यार मैं इम्प्रूव हो चुका हूँ, यार मेरे को अब क्या इम्प्रूव होना है, तो अब आप इम्प्रूव नहीं हो पाओगे। क्योंकि इम्प्रूवमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलती है, चाहे मैं 70 साल का हूँ या 7 साल का हूँ, इम्प्रूवमेंट की जगह होती ही है। इम्प्रूवमेंट इज़ द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड, द स्कोप इम्प्रूवमेंट इज़ द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड। सो आप किसी भी एज में हो, किसी भी जगह हो, आप में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता ही है। नो वन इज़ परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, नॉट मी, नॉट यू, नॉट वी ऑल नीड टू बी गुड। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये ध्यान रखिए। मेक श्योर दैट यू आर कोपिंग द राइट पर्सन। लेट सपोज आप किसी को फॉलो कर रहे हो, मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ या आप किसी को फॉलो कर रहे हो। सो आप किसको फॉलो कर रहे हो ये भी बहुत ज़रूरी है। आप एक ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हो जिसको खुद नहीं पता कि उसे क्या करना है, या फिर एक ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हो जो खुद एक सक्सेसफुल पर्सन है। आप एक अनसक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करोगे, एक सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करोगे? ऑब्वियसली एक सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करोगे, क्योंकि जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करोगे तो आपको वो तरीके सिखाएगा, वो आपको बताएगा कि सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है लाइफ में। बुनास्पद एक अनसक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करके क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं, सिर्फ आपको दुख ही मिलेगा, यार मैंने ऐसे फॉलो किया और उसने मुझे कुछ सिखाया भी नहीं। बुनास्पद एक ऐसे इंसान के साथ, ऐसे इंसान को फॉलो करो जो सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, और उसके बाद वो आपको चीज़ें सिखाएगा। सो दीज आर द 13 पॉइंट्स जो मैंने आपको बुक से बताया, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, कि बड़ा सोचने का क्या फ़ायदा होता है। रिटन बाय जॉन एच स्वाट्स। सो मैं एक बार फिर आपको 13 पॉइंट्स बताता हूँ ताकि आप एक रिकॉल कर लें कि 13 पॉइंट्स का क्या है। फर्स्ट, यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू बिलीव दैट यू आर वर्थ इट। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, जब आपको ये उम्मीद होगी कि मैं इसे पा सकता हूँ। सेकेंड, एक्सक्यूज आर द मेन रीज़न ऑफ फेलियर। कोई भी इंसान जब फेल करता है, उसका एक ही रीज़न होता है, उसके पास एक्सक्यूज़ होता है फेल होने का। यार मेरे पास ये नहीं था तो मैं ये नहीं कर पाया। थर्ड, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। जितना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा, उतना कम आप में फियर होता चला जाएगा। आप कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें? जिस भी चीज़ से सबसे ज़्यादा आपको डर लगता है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फेस करें। लेट सपोज आपको किसी अपोजिट सेक्स से बात करने में डर लगता है, एज अ लड़का मुझे लड़की से बात करने में डर लगता है, या लड़की एज अ लड़के से बात करने में डर लगता है, तो आप जितना ज़्यादा फेस करोगे उतना ज़्यादा आपका डर ख़त्म होता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 4, हाउ टू थिंक बिग। क्योंकि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, और बड़े सोचने के लिए कुछ ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपको जो बोल रहे हो वो ऐसा सोचना पड़ेगा, पावरफुल वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। जब आप सोच रहे हो आपको उससे पहले सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बाण से निकला तीर और शब्द जबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, और वो चोट दोनों एक समान करते हैं, और सेकंड वाली थोड़ी ज़्यादा करता है। सो थिंक बिग। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। 2 तरह की थिंकिंग होती है, फैक्ट मेमोराइजेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइजेशन से फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद रखती है, और क्रिएटिव थिंकिंग आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। पॉइंट नंबर 6, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। हाय संग्राम, कैसे हो संगम? आप क्या बन जाओगे वो डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या पढ़ते हो, क्या आप देखते हो,
टीवी में, क्या आप पॉजिटिव चीज़ देखते हो या आप नेगेटिव चीज़ देखते हो? सिर्फ आपको सही देखना, पॉजिटिव रहने के लिए सिर्फ एक तरीका है कि आप पॉजिटिव लोगों से सराउंड करें, पॉजिटिव चीज़ें देखें। लेकिन सबसे पहले सोचना तो पड़ेगा। जब तक आप सोचोगे नहीं तो उसको एक्शन में कैसे कन्वर्ट कर दोगे? एक्शन इज़ द सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज़ थिंकिंग। जब आप सोचोगे उसके बाद आप एक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे। लेट सपोज सीधा आपने एक्शन कर दिया, कुछ सोचा ही नहीं, उसका क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा। अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बॉलर ने फुल टॉस डाल दिया और मैं उसको यॉर्कर की तरह खेल रहा हूँ, क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद उसको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैनेज योर एनवायरनमेंट टू गो फर्स्ट क्लास। सो आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, आप क्या सोचते हो, आप क्या पढ़ते हो, क्या आप देखते हो, वो सब आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आपके दोस्त किस तरह है? आपके दोस्त वैसे हैं जो आपके साथ क्लबिंग करते हैं, जो दारू शराब सिगरेट पीते हैं, क्या वो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर पाएंगे? आई डोंट थिंक कि नहीं कर पाएंगे। या आपके वो फ्रेंड्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको नई नई चीज़ें सीखने के लिए मोटिवेट करते हैं। सच बात है, 10 में से 9 लोग सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल है। अगर आप सिर्फ सोचोगे, करोगे नहीं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले सोचो और फिर उस सोच को एक्शन में इम्प्लीमेंट करो, तब आपको सक्सेस मिलती है। सिर्फ सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता। सो इन्वायरमेंट आपका किस तरह का है वो आपकी सक्सेस को डिफाइन कर जाता है, कि किस तरह से के लोगों से आप सराउंडेड हो, पॉजिटिव लोगों से सराउंडिंग हो या नेगेटिव लोगों से सराउंडेड हो, वो आपकी सक्सेस बहुत ज़्यादा हद तक डिफाइन कर देता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि आप मुझे मेरे 5 दोस्त दिखा दो ताकि मैं आपको आपका फ्यूचर दिखा दूंगा। सच बात है, आपके जैसे फ्रेंड्स होंगे वही आपका फ्यूचर भी डिसाइड कर देंगे। पॉइंट नंबर 8, मेक योर एटीट्यूड योर लाइफ। आपका एटीट्यूड आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। आप कितने जनरस हो, आप कितने हेल्पफुल नेचर के हो, वो आपका सक्सेसफुल डिफाइन करेगा, सक्सेस डिफाइन करेगा। पॉइंट नंबर 10, थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। हमेशा लोगों के बारे में सही सोचो, गलत मत सोचो। अगर गलत आप लोगों के बारे में गलत सोचोगे तो आप लोगों से भी वैसा ही फीडबैक पाओगे। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको भी पॉजिटिव फीडबैक्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव फीडबैक ही मिलेंगे आपको। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। एक्शन नंबर 10, गेट द एक्शन हैबिट। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, जैसे कि मिस्टर संगम ने कहा, सोचने से काम नहीं चलता, एक्शन लेना पड़ता है। सो एक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। सुबह उठो, 10 मिनट दो अपने आप को, या फिर रात को सोने से पहले 10 मिनट दो अपने आप को कि मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या करना है, किस किस टाइम पे क्या क्या करना है। अगर आप ये करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, आपकी थिंकिंग इफेक्ट करेगी इससे, और लोग आपको एक नए नज़रिए से देखेंगे। सो कोई भी आप चीज़ें करो, पहले सोचो और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कुछ भी काम नहीं होने वाला। Use and read motivation quotes but don't take any action. This is problem brother. Don't worry brother, don't worry. मैं भी तो सेम ही कर रहा हूँ। मैं जितने पॉइंट्स बताऊंगा, कौन कितने लोग इसको अप्लाई करेंगे? एक भी नहीं करेगा, एक भी नहीं करेगा। बट आपका काम है सिर्फ आप करते चले जाओ। वो कहते हैं ना, आप अपना काम है करते चले जाओ, जो होगा देखा जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल, दैट्स द थिंग। आपका काम है लोगों को मोटिवेट करना, मोटिवेट करते चले जाओ। अब वो उनके ऊपर है कि वो मोटिवेट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। आप किसी की थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते एक दिन में, बट आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। अगर मैं इंस्टाग्राम लाइव कर रहा हूँ, ये आई डोंट थिंक कि मैंने कितने ज़्यादा कर दिए हैं, और आई डोंट थिंक कि मेरे से कोई इंस्पायर भी हुआ होगा, बट मैं इससे डीमोटिवेट थोड़ी हो सकता हूँ। और यही सेम आपको भी करना है। आपका काम है काम करते चले जाओ, दैट्स इट। लोग नहीं हो रहे बट वो देख रहा है ऊपर। रिजल्ट्स विल फॉलो यू, जस्ट वेट एंड वॉच। पॉइंट नंबर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। एक हार से हाहाकार नहीं मचता और एक जीत से भी हाहाकार नहीं मचना चाहिए। अगर आप हारे हो तो उस हार को किस तरह से जीत में कन्वर्ट करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। हर अपॉर्चुनिटी एक रिस्क के साथ आती है कि आपको फेल होना ही पड़ेगा। अगर आपको लर्न करना है, आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको फेल होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होगे तो आप सीखोगे नहीं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पहली बार में ही पास हो गया हो, या उसने पहली बार में ही, कहते हैं ना, जब रोटी हमने बनानी सीखी होगी तो आई डोंट थिंक कि हम में से कोई ऐसा है जिसने पहली बारी में गोल रोटी बना ली होगी। मेरे से तो खैर आज भी नहीं बनती है, बट पहली बारी में कोई कुछ नहीं कर पाता है।
सो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप अपने नंबर ऑफ ट्राइज इंक्रीज़ कर देते हो ना, तो आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी उतनी इंक्रीज़ होती चली जाती है। द नंबर ऑफ ट्राइज यू इंक्रीज, द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो जब आपने मिस्टेक किए कोई भी, लेट सपोज आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट्स में आपने देखा है कि यार मेरे को इसमें इसकी जगह एम लगाना चाहिए था या वॉज की जगह विल लगाना चाहिए था। जब आप अपने आप को एग्जामिन करते हो, अपने रिजल्ट्स को एग्जामिन करते हो, तो वो आपको आपके मिस्टेक्स के बारे में बताता है। और जब आपको अपने मिस्टेक्स के बारे में पता चल जाता है, तो जब आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो, और जब आप उस पर काम करना शुरू करते हो, जो नेक्स्ट टाइम आप उस मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करोगे। दैट्स द मीन। आप मिस्टेक्स करो, यू आर अलाउड टू डू मिस्टेक्स। अरे इंसान ही मिस्टेक करेगा, कौन नहीं करेगा, बट ज़रूरी ये है उन मिस्टेक्स से सीखना। पॉइंट नंबर 12, योर गोल टू हेल्प योर ग्रो। हर इंसान की आंखों में एक गोल होना चाहिए। मेरा गोल है कि मुझे घर खरीदना, मुझे 35 से 40 की उम्र में रिटायरमेंट होना है, मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि मैं 40 साल की बाद की उम्र में काम ना करूं, मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े 40 साल की उम्र के बाद। मेरा गोल ये है, मुझे 35 से 40 साल के बीच में रिटायरमेंट चाहिए। फॉर देट आई एम वर्किंग हार्ड। तो हर इंसान की आंखों में एक गोल होना चाहिए, एक ऐसा गोल जो उसको आगे बढ़ने में मोटिवेट करे, आगे बढ़ने में ग्रो करे। क्योंकि जब आपने एक गोल सेट कर दिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना एफर्ट लगाना है। लेट सपोज जब एक बैट्समैन सेकेंड इनिंग में आता है ना रन चेस करने, तो उसकी आंखों में एक टारगेट सेट होता है कि यार मुझे 50 ओवर में 350 बनाने, तो उस तरह से खेलेगा। या फिर मुझे 50 ओवर में 200 रन बनाने, तो वो इस तरह से खेलेगा। उसे अपने एफर्ट्स के बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे कितने एफर्ट लगाने हैं अपने गोल्स को अचीव करने में। सो जब आपके आंखों के सामने एक गोल होता है, तो आप उस तरह से एक्ट भी करते हो। पॉइंट नंबर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। अब आपने सोचना शुरू कर दिया, बट एक लीडर के सोचने में, एक आम इंसान के सोचने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब एक लीडर सोचता है तो वो सबके बारे में सोचता है, लेकिन जब एक आम इंसान सोचता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सो हमेशा जब आप सोचें, तो आप एक अथॉरिटी पोजीशन पर अपने आप को सेट करें, उसके बाद सोचें। क्योंकि जब आप अपने आप को एक अथॉरिटी पोजीशन में सेट कर दोगे ना, तो आप लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। यार मैंने अगर ये डिसीजन लिया तो उसका नुकसान ना हो जाए, या मैंने ये डिसीजन लिया तो मेरा नुकसान ना हो जाए। तो जब आप डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे ना अथॉरिटी पोजीशन पर रह के, तो आप एक सही डिसीजन लोगे, कंट्रोल डिसीजन लोगे, जो आपको भी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में और लोगों को भी हेल्प करेगा। एक लीडर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, लीडर का काम ये भी होता है कि मुझे दूसरों को भी सक्सेसफुल बनाना है। दैट्स द मेन रीज़न। हमेशा अपने आप से ये पूछते रहे कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। रोज़ आप अपने आप से ये सवाल पूछे, यार मैं अपने आप को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ, मैं अपने आप को रोज़ कैसे बेहतर बना सकता हूँ। दैट्स द मेन थिंग। आप अपने आप को ये सोचते रहे। मेक श्योर दैट यू आर कॉपिंग द राइट पर्सन। दो तरह का इंसान, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल। आप किस इंसान को कॉपी करोगे आप पे डिपेंड करता है, और आपका करियर भी इसी पे डिपेंड करता है कि आप एक अनसक्सेसफुल इंसान को फॉलो करोगे या सक्सेसफुल इंसान को फॉलो करोगे। सो मेक श्योर कि आप सही इंसान को कॉपी करो। सो ये जो 13 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, वो बुक थी द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, रिटन बाय सुआज। तो आई होप इस लाइव के रिगार्डिंग आपने कुछ ऐसे पॉइंट सीखे होंगे जो शायद आपको आपकी थिंकिंग चेंज करने में आपकी हेल्प करें। सो अगर आपको कुछ भी 1% भी अगर आपको अच्छा लगा हो, तो हिट द लाइक बटन, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई बुक का रिव्यू लेके आऊँगा तो और अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। लेट सपोज मैंने कोई गलती भी की है इस लाइव में, वो भी बताएं, क्योंकि जब आप मेरे को मेरी गलतियाँ बताएंगे तो मैं उस पर काम कर पाऊँगा, और ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना हो पाए मैं उसकी भी कोशिश करूँगा। और कुछ आपकी एडवाइस हो कि मैं अपनी लाइफ को किस तरह से और अच्छा कर सकता हूँ, तो वो भी आप बताएं। सो प्लीज़ मेक श्योर यार गाइस, आप लाइक करें, कमेंट करें। और ऐसा ही मैंने लाइव आज फेसबुक लाइव पे किया है। फेसबुक पे मैंने एक आज द रूडेस्ट बुक एवर का रिव्यू किया है। सो आप वहाँ पे जाके उस रिव्यू को भी देख सकते हैं, कुछ इसी तरह का रिव्यू है। सो गाइस प्लीज़ देखें। एंड गुड इवनिंग गाइस, गुड नाइट, शब्बा खैर।